Assalamu alaikum. Uh, First of all, I would really appreciate the two presentations. They were very technical, very eye-opener. Because of my different background, I'm a business graduate and my PhD is in marketing. I'm going to share a very different perspective of sustainability with you. Now, everybody knows sustainability is a global challenge and this is a target for everyone, you know. When I'm sure you must have heard the word triple bottom line. The word says if you want to have a sustainable life, you must deliver everything to three stakeholders: the people, the profit, and the planet. Now, for example, if we talk about the society, the product should be good for the society. There must be a profit for the organization who is making, and there must be something for the environment. Conventionally, what was happening, जो companies product बना रही थी, they were offering something which were in demand, which were profitable, but they were not they had no concentration for the planet. इस वक्त, if we talk about the sustainability, there must be something for the planet. If it is not good for the planet, it cannot be classified as a sustainable. Okay, now if you see, I'm sorry. Now, what is the definition of the sustainability? In simple words, we have heard this word a lot. It means meeting the needs of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs. अगर हम मौजूदा जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि आने वाली नस्लें अपनी बका के लिए परेशान हो जाएं, तो इसका मतलब है कि हमने एक अनसस्टेनेबल लाइफ गुजारी है. तो इस वक्त जितने भी यूनिट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सस्टेनेबिलिटी की अप्रोच को अडॉप्ट करें. ओके, एवरी बिजनेस और एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम इम्पैक्ट on the society, on other people, whether it is positive or negative, whether it is unintentional or intentional. Now, if you see in my slides, I have highlighted or I have given the red color to two things: negative or unintended, because they are the basically they are the red flags. Because we have done so many things in our life which were we did not have any intent to do that. And the second thing, there are so many things which we do which has a negative impact on people's life. We need to be careful when we are conducting anything. Does it have a negative impact or not? Okay, because of the less time, because Arshi has told me, because so that's why I'm moving. What are the basic stakeholders of sustainability? The government agencies, the government sector, then we have a business and corporation. The entire health sector comes under it, the private sector. Then we have NGOs, Dr. Bari is sitting here. Then we consumers, everybody is consumer, and the communities. These are the main 5 stakeholders of health sector in Pakistan. Every stakeholder has to play its parts in the sustainability movement. Now, what are the sustainable goals? Now, United Nations Sustainable Goals were presented in 2016. They are 17 in numbers, and if we see, the 3 is the main goal which we are looking for. I would, can you give me a mic, please? Mic. I would focus on 2 goals here. The first one is the 3, which is very obvious: good health and well-being, and then I would emphasize on the 12, responsible consumption and production. The health sector has to be very responsible towards their consumption pattern, because we have seen, if we talk about the health sector, waste management is a big issue. अभी यहाँ पे मेरी बात हो रही थी सर से, तो वेस्ट मैनेजमेंट का ये हाल है कि जो हॉस्पिटल का वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने के लिए, रिसाइकिल करके आप खाने पीने की चीज़ें बना रहे हैं. सर ने बताया कि स्टडी उन्होंने कराई थी, एक रिसर्च कराई, तो बच्चों के फीडर्स तक बन रहे हैं. दिस इज़ अ बिग इशू. आपकी जो हेल्थ सेक्टर है, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स दिस. Now, what can be the major problems
if we do not take sustainability in our mind. Air pollution, we have the waste management issue, definitely ozone depletion, because what happens because of the carbon emissions, the ozone layer is getting converted into the oxygen. Then deforestation, this is a big issue. हम जिस तरह चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं, अगेन डिफॉरेस्टेशन की वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जो लोग कराची हाइट हैं और जिनके बच्चों का कराची से बाहर जाना नहीं होता, उनमें से अक्सर लोगों ने बहुत से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या जो बर्ड्स हैं उसकी स्पीशीज़ देखी नहीं है. तो अगेन दिस इज़ अ बिग चैलेंज. हम बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं. देन वी हैव एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. आप कराची में ही रह के ही सिर्फ सेंट्रल कराची और अगर आप कोरंगी या साइड के एरिया के में चले जाएं तो देयर इज़ अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस ऑफ एयर क्वालिटी. आपको विद इन अ सिटी आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से हमने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में कंट्रीब्यूट किया है. नाउ द मेजर पार्ट what I'm emphasizing on is the carbon footprint, the concept of the carbon footprint. Now, the carbon footprint means it is a total amount of greenhouse gases. It includes the carbon dioxide and methane and other poisonous gases that are generated by our action. When I'm saying by our action, it means everyone. For example, मैं और आप जब आज अपने घर से ये कॉन्फ्रेंस या सेमिनार अटेंड करने आए हैं, वी हैड सम कार्बन फुटप्रिंट. मैं इसकी थोड़ी सी आपके साथ कैलकुलेशन करूँगा तो एक आपको आइडिया होगा कि हाउ टू हैव एन आइडिया कि व्हाट इज़ आर कार्बन फुटप्रिंट ऑन डेली बेसिस एंड हाउ टू रिड्यूस इट. वंस यू हैव एन आइडिया कि व्हाट इज़ अ कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली आप उसको रिड्यूस करने के लिए भी काम कर सकते हैं. What is the international standard? If we talk about, if you are creating 7,000 to 10,000 kg of carbon dioxide per year, it means you are having a very healthy life. If you are producing between, it's the average, sorry. And if you are producing less than 7,000, it means you are having a very sustainable lifestyle. And if you are producing more than 10,000 kg, 10 टन, मैं इसको यूनिट डिफरेंट कर रहा हूँ. 10,000 kg मीन्स 10 टन. अगर एक इंसान साल में 10 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है तो वो एवरेज से अबव है. नाउ रूल ये बताता है, देयर इज अ वेरी फेमस रूल 60-15 कार्बन फुटप्रिंट. ओके, रूल ये है, हम अगर अपने 60% कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वी जस्ट नीड टू कंसंट्रेट ऑन 15% ऑफ आवर डेली एक्टिविटी. अगर हम 15% एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा 60% कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कंट्रोल हो सकता है. नाउ व्हाट आर द बिग 5 एलिफेंट्स? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखेंगे और ये इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होता है, दे आर द 5 बिग हेड्स. The 5 elephants in the room are the electricity, usage of electricity. If you control, or on organizational level, if you control your electricity consumption, आपका carbon footprint dramatically कम हो जाएगा. If you control your consumption of natural gas, gasoline, petrol, and then flying, commutation जो आप करते हैं, transportation, and then food. These are the 5 top accounts where we contribute through जिसमें हम अपना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर रहे हैं. अब मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करूँगा. टर्शरी हॉस्पिटल्स फुटप्रिंट, मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपके साथ करूँगा. टर्शरी हॉस्पिटल्स आर द हॉस्पिटल विच आर द कंप्लीट हॉस्पिटल. लोग अपने सॉल्यूशंस के लिए वहाँ आते हैं. अगर मैं कराची की बात करूँ या लाहौर, इस्लामाबाद की बात करूँ तो दे आर द सिटी विच हैज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर. और अगर मैं हैदराबाद, गुजरावाला या ऐसे इलाकों की बात करूं तो यहाँ पे जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं जैसे लम्सी है, यहाँ पे लोग दूसरे शहरों से आ रहे होते हैं जस्ट टू गेट द हेल्थ ट्रीटमेंट. नाउ कुछ लोगों से मैंने पहले ये, नाउ लेट्स हैव एन आइडिया अबाउट द पेट्रोल कंजम्पशन. 1 गैलन में 3.785 लीटर्स होते हैं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये बताता है कि 8,887 आप केजी गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे अगर आपने 1 गैलन जला लिया. तो जब मैंने इसको क्योंकि बिकॉज एज अ नेशन वी डील विद इन लीटर्स, तो मैंने इसको लीटर में कन्वर्ट किया.
पर लीटर 2.337 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप अभी गाड़ी में आए हैं और आने जाने में यू आर गोइंग टू कंज्यूम 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो घर जाते जाते तक आप 4.5 kg कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ चुके होंगे। तो दैट्स वाई दिस इज सेड कि कार पूलिंग इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू अडॉप्ट। ओके, ना ये बेसिक द ख्याल रखिएगा 2.337 पर kg। Now, if we talk about the tertiary, normally जो number of patients हैं just to get the treatment और जो test वगैरह होते हैं 3-3.5 हज़ार लोग approx daily visit करते होंगे एक tertiary hospital में। Okay. अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई एम श्योर यू वुड एग्री विद मी कि देयर आर नंबर ऑफ विजिट विच आर अवॉइडेबल। मैंने आई टॉक टू मैनी पीपल और आई जस्ट वांटेड टू कीप वेरी लो। मैंने ये अज्यूम किया कि जो 100 लोग आते हैं उसमें से 2.5-3% लोग जो हैं उनका विज़िट अवॉइडेबल होगा। तो अगर मैं सिर्फ 3.3% ही लूँ, क्योंकि मुझे जो कैलकुलेशन है आई वांटेड टू कीप इट सिंपल, तो मैंने ये अज्यूम किया कि इन 3,000-3,500 विजिट्स में से 100 विजिट्स ऐसे हैं जो अवॉइडेबल थे, जिसको अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्लर्क लेजीनेस, बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर। आपने कहा बेटा आप कल आ जाना, कल आके दिखा देना, यू नो इस टाइप की चीज़ें हम नॉर्मली देखते हैं। तो 100 विजिट डेली जो हैं हॉस्पिटल में ऐसे हो रहे होते हैं जो अवॉइडेबल हैं। ओके, नाउ अगर कराची की बात करें तो इट्स अ बिग सिटी। कोई न्यू कराची से जो है JPMC जा रहा है, डॉ जा रहा है, सिविल हॉस्पिटल SIUT जा रहा है, इंडस जा रहा है, तो बहुत लंबा डिस्टेंस है। मैंने उसको जब सोचा तो 30 किलोमीटर राउंड द ट्रिप लगाया। कुछ लोग कम डिस्टेंस से आते हैं, कुछ करीब से। इसी तरह दूसरे शहरों की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट लम्स, तो दूसरे शहरों से आ रहे हैं, तो ऑन एवरेज एक बंदा आने जाने में 30 किलोमीटर लगा रहा होगा आने जाने में। ओके, नाउ द एवरेज व्हीकल माइलेज, कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई बाइक पे आ रहा है। गाड़ी जो है 7, 8, 9, 10 की एवरेज देती है, बाइक 25-30 की देती है, कुछ लोग चिंची में आ रहे हैं। जस्ट टू कीप इट सिंपल मैंने लगाया कि ऑन एवरेज 15 किलोमीटर पर लीटर की हमने एक माइलेज तय कर ली, जस्ट टू कीप दिस थिंग सिंपल। ना पर विज़िट कंजम्पशन क्या हुई, एक विज़िट में 2 लीटर हो रहे हैं, एक विज़िट में 2 लीटर हो रहे हैं। मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, 200 लीटर आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं। 200 लीटर आप डेली इस्तेमाल कर रहे हैं किस कामों के लिए? अवॉइडेबल विजिट्स के लिए। नाउ 5,000 लीटर मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया, 5,000 लीटर इस्तेमाल हो जाते हैं एक टर्शरी हॉस्पिटल में अवॉइडेबल जो है विजिट्स के लिए। नाउ इफ़ यू सी व्हाट इज़ द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ इट, 12 महीने में आप 140 टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं अवॉइडेबल जो है विजिट्स के थ्रू। इसका मतलब ये थोड़ा सा बिहेवियरल चेंज 140 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ओमिट कर सकता है। मज़े की बात ये है, प्लीज़ डू नॉट थिंक दिस इज़ अ टोटल कार्बन फुटप्रिंट। ये सिर्फ वो है जो आप अवॉइड कर सकते थे। ना मैंने ऑपरेशंस की बात की है, ना मैंने काम की बात की है। ये सिर्फ एक लेजर एटीट्यूड था कि आप जो है अपना यानी 1% भी एटीट्यूड चेंज करें, 2% भी एटीट्यूड चेंज करें तो इट्स अ मैग्नीफायर इफेक्ट। और अगेन ये एक टर्शरी हॉस्पिटल की बात है। अगर हम सिंध के सारे टर्शरी हॉस्पिटल्स को गिने तो अब मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं 25, 30 वॉट एवर द नंबर इज़। थैंक यू।